Hi students, so welcome back. So today I am here with the second part of the third chapter, that is of economics, that is money and inflation. राइट फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर दिया है. जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखे. उसमें हमने बार्टर सिस्टम, उसके लिमिटेशंस, मनी, उसके फंक्शंस डिस्कस किए हैं. Now today I am going to start the second part of the chapter. The chapter name itself says money and inflation. So today I am going to start with the second part, that is inflation. Now what is inflation? In normal sense, if we see inflation matlab general rise in the price level of all the goods and services, that is known as inflation. But in economics we are going to learn it in a at a deeper level, I can say. Now first we are going to discuss the definitions of inflation. Now over here, according to AP Learner, a situation of excess demand over supply of goods is called inflation. मतलब excess demand मतलब ज़्यादा डिमांड, जहाँ पे सप्लाई से भी डिमांड ज़्यादा हो, वो क्या सिचुएशन उन्होंने बोला है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. डिमांड कब बढ़ रही है? जब लोगों के पास ज़्यादा इनकम आएगी तब डिमांड बढ़ेगी. राइट नाउ अकॉर्डिंग टू AC Pigou, he said that inflation is said to occur when मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन द रियल इनकम. उन्होंने क्या बोला है कि व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस, मॉनेटरी इनकम मतलब मनी की जगह पे ये वर्ड यूज़ किया है, एंड इट राइजेस मतलब जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा, जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तब लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि उनके पास इनकम ज़्यादा आएगी. देयरफॉर दे विल डिमांड मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स, और उसी टाइम पे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वैसे ही रहेंगे और लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा. तो जब प्राइस लेवल बढ़ रहा है, दैट मीन्स हियर वी आर फेसिंग द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. Right, so in short I can say that when supply of money increases, first point, when supply of money increases, income increases, and when income increases, that means people create excess demand क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए. So at that time what happens, that we face a situation of inflation. Right, so in short we can say that when there is increase in supply of money, there is increase in income of the people, and due to that there is increase in the demand of money, and because of that there is increase in price level of goods and services due to more demand, and that is a situation of inflation. Now over here they have given four main characteristics of inflation, inflation, and down they have given the different points. Now first characteristic of inflation is constant rise in price level, जहाँ पे price level बढ़ता जाएगा. Then second is price level in all sectors of the economy. हर एक सेक्टर्स में प्राइस लेवल बढ़ेगा. ऐसा नहीं है कि कुछ ही गुड सर्विसेज में ये चीज़ आपको देखने मिलेगी. इट विल अफेक्ट होल इकोनॉमी. Then third is purchasing power decreases. When I say purchasing power, मतलब यहाँ पे मैं प्राइस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैल्यू की बात कर रही हूँ. Purchasing power decreases मतलब वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज. पैसे की अहमियत वो कम हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर इन्फ्लेशन आई यूज टू बाई से ₹300 के में फॉर एग्जाम्पल 3 kgs ऑरेंजेस ले पा रही थी. राइट, 300 rupees 3 kg oranges. Now after inflation what happened, to buy 3 kg oranges I have to pay rupees 600. Means here what happened, price level increased और वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई कि वो ही 3 kg ऑरेंजेस के लिए मेरे को कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 600 rupees, डबल द अमाउंट देन बिफोर. राइट, सो परचेसिंग पावर डिक्रीजेस मतलब जहाँ पे पैसे आपको ज़्यादा देना पड़ता है आपकी वैल्यू कम हो जाती है, आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाती है, आपको गुड्स और सर्विसेज तो उतने ही मिल रहे हैं. राइट, फर्स्ट ऑल्सो यू आर गेटिंग 3 kgs, राइट नाउ ऑल्सो यू आर गेटिंग 3 kgs, बट द वैल्यू इज डिक्रीजिंग, that is from ₹300 to ₹600. Right, the value of money is decreasing, not the price. I am not talking about price, I am talking about value. Then the rise in the price level after full employment is inflation. मतलब लोगों के पास पैसे है, सब लोग अच्छी इनकम कमा रहे हैं,
then to price is increasing, then to the price level is rising, that situation is known as inflation. What is that situation known as? Inflation, right? Here they have given some other points which are to be considered for better understanding inflation. First, they have said when government has kept control over and suppress increase in price level via rules, laws and subsidies, it is considered inflation even if there is no price rise. यहाँ पे प्राइस राइज नहीं हो रहा है, पर रूल्स, लॉज और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट लगाती है उसकी वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन अकर होती है, उसको क्या बोलेंगे? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, राइट? सो व्हाट विल गवर्नमेंट डू? जस्ट टू नॉट अफेक्ट आर कंट्रीज इकोनॉमी, खुद की इकोनॉमी को अफेक्ट ना हो इसलिए वो हाई प्राइस वाला क्रूड ऑयल अभी लेके नहीं आएंगे। दे विल गिव डिफरेंट सब्सिडीज, डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट लॉज, जिसके थ्रू क्या होगा कि वो हाई प्राइस मिनिमम जो भी हमारे यहाँ पे जो प्राइस अभी चल रहा है वही प्राइस पे यहाँ के लोगों को वो क्रूड ऑयल अफोर्ड हो। दिस इज व्हाट इट इज नोन एज दैट देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन वेयर the price rise was in international market, but government through its control, rules, laws, subsidies, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया that they control that high price and brought to and they brought the minimum rate or the average rate towards their economy, जिसकी वजह से इकोनॉमी को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो this type of situation is known as what? Suppressed inflation. What it is known as? Suppressed inflation. This particular point can be asked for your 1 or 2 marks also, that what is suppressed inflation. Then if in an economy for shorter period of time there is an increase in the price of limited goods and services, then it is not inflation. Inflation is not for the shorter period of time or for limited goods and services, right? Inflation is for a longer period of time, उसका duration लंबा है and it occurs or you can say it applies to all the goods and services, right? हर एक goods और services को वो apply होता है। Then third, they have said that when some factors of production are unemployed and there is price rise, then producers gain an incentive to produce more, so economy activity boost and employment also rises. Same way कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके नीचे का पॉइंट भी सेम चीज़ बोल रहा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन समझ में आ सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो जो भी लोग अनएम्प्लॉयड है वो एम्प्लॉयड होंगे, उनको इनकम मिलेगी, इनकम से आगे हमारी सेविंग्स जनरेट होगी, सेविंग्स के साथ हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन मतलब गुड्स और सर्विसेज भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उस टाइम पे अगर प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ प्रोडक्शन बढ़ा है, लोगों को ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट मिली है और लोगों के पास अब इनकम आ रही है, उसकी वजह से डिमांड भी ज़्यादा आ रही है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, सप्लाई भी ठीक से चल रहा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ तो ठीक है, राइट? नॉर्मली 2 to 3% का इन्फ्लेशन चलता है, बट व्हेन इट गोज बियॉन्ड 3% एट दैट टाइम इट इज़ हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। बट एट सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट में ठीक है क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उसके बाद उनको इनकम भी मिल रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, अगर सिचुएशन कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी में हम देखें कि एम्प्लॉयमेंट फुल है, इट इज़ ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट, एट दैट टाइम ऑल्सो इफ price level increases, that situation is harmful. That is known as inflation, that even if employment is full, people are already having income, but due to somewhere there is increase in supply of money, कहीं ना कहीं money की supply बढ़ रही है, even due to full employment, at that time inflation situation occurs because उसकी वजह से क्या होगा, सारे गुड्स और सर्विसेज में प्राइस लेवल बढ़ जाएगा एंड दैट इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, दैट इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। सो इन शॉर्ट अभी हमने जो पढ़ा मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें एक ही चीज़ दी है कि दैट ड्यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू सप्लाई ऑफ मनी देयर इंक्रीजेस इनकम ऑफ द पीपल, इनकम भी बढ़ जाती है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है,
डिमांड बढ़ जाएगी तो गुड्स और सर्विसेज की प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस लेवल में अगर इंक्रीज आया तो इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन इकोनॉमी में अकर होती है. Now we are going to see causes of inflation. What are we going to see? Causes of inflation. There are two causes of inflation. Mainly inflation is caused due to two reasons, that is demand and supply. Demand and supply. So here I have given, that is increase in demand and increase in production cost. क्या दिया है? Increase in demand and increase in production cost. ये दो चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है? Inflation बढ़ रहा है. Now when I say increase in demand का मतलब क्या है कि जब इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशन आए तब एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है. वी हैव स्टडीड राइट नाउ ओनली इन अर्लियर थिंग्स दैट वेयर टोटल डिमांड, एग्रीगेट का मतलब क्या है? टोटल. वेयर टोटल डिमांड इज मोर देन टोटल सप्लाई, that means here we are facing demand pull inflation. What does it cause? Demand pull inflation. That's such a situation where there is increase in aggregate demand as compared to aggregate supply. It is called as demand pull inflation. Right? Now increase in demand has its three causes. तीन चीज़ों की वजह से डिमांड में इंक्रीज होता है. सबसे पहला दिया है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. क्या दिया है? इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, जो मैंने आपको पहले अभी ही समझाया कि इन्फ्लेशन इसी वजह से होती है, क्योंकि अगर सप्लाई हमारे इकोनॉमी में बढ़ेगा उसकी वजह से ही डिमांड भी बढ़ रहा है. राइट? इफ पीपल आर गेटिंग इनकम then and then they are going to purchase more, otherwise they are not going to purchase more. Therefore supply of money increases, demand increases. Right? Demand increases of goods and services, and which increases price level. अब क्या हो सकता है कि डिमांड तो बढ़ रही है पर उसके सामने डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, उसके सामने सप्लाई लिमिटेड इंक्रीज हो रहा है वरना इंक्रीज ही नहीं हो रहा है. ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल कॉज इन्फ्लेशन. Second is increase in public government or expenditure. Now when I say increase in public or you can say government expenditure, मतलब गवर्नमेंट हमको फैसिलिटीज़ के लिए जो भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उसके पीछे वो लोग एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं. राइट? सो व्हाट हैपन्स दैट फॉर प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटीज़ दे हैव टू प्रोड्यूस दैम. तो प्रोड्यूस के लिए वो लोग ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे. लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे मतलब सप्लाई ऑफ मनी इनकर होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगा और उसकी वजह से क्या होगा? प्राइस लेवल भी बढ़ेगा. राइट? गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट सर्विसेज विच वी पीपल और पब्लिक नीड्स. That is, they make highways, roadways, police stations, fire stations, bus stations, you can say some of the government offices, many things they make. तो वो सारी सर्विसेज हमारे लिए वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, प्रोविजंस, बेसिक यूटिलिटीज़ देते हैं. तो वो सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकर करेगा. तो उसकी वजह से क्या होगा? शायद अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन होगी वो भी बेटर हो जाएगी क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. वरना भी और भी क्या हो सकता है कि सप्लाई ऑफ मनी इसकी वजह से बढ़ सकती है कि लोगों के लिए वो एक्सपेंडिचर क्रिएट कर रहे हैं और वही पैसे वो सर्कुलेट हो रहे हैं. देयरफॉर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस, लोगों को इनकम मिल रही है, डिमांड ज़्यादा जनरेट हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, और उसकी वजह से प्राइस राइज भी हो रहा है. So that can be one of the reason. And third is overpopulation. What is third? Overpopulation. अब हम सबको पता है कि इंडिया रैंक्स सेकेंड इन होल वर्ल्ड इन पॉपुलेशन आफ्टर चाइना. राइट? इंडिया हैज़ ओवर पॉपुलेशन ऑलरेडी. सो ये ओवर पॉपुलेशन हर साल जितने भी बच्चे बॉर्न होते जाएंगे उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी. इसके पहले जो इतने साल तक हम लोग जी रहे हमारी डिमांड बढ़ती जाए. So each new baby or you can say each new individual creates new demand. So the demand keeps on increasing. तो demand fulfill कैसे होगी? With the increase in supply of money. पैसे होंगे तो demand fulfill हो पाएगी. Right? So the same cycle again follows, and that is also one of the reason. Overpopulation is also one of the reason for inflation. Right? So here they have given the supply of money leads to increase in demand.
supply of money leads to increase in demand, followed by increase in price level, followed by increase in price level of goods and services, and it causes inflation, right? Now second cause which we have to learn, that is increase in cost of production, राइट जैसे हमने इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखा, वैसे यहाँ पे इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखेंगे, या उसको आप बोलेंगे सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे वहाँ पे डिमांड ज़्यादा था सप्लाई से, इसलिए हमने क्या बोला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे जब सारे रॉ मटेरियल्स हैं, मशीन्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर रेट्स है, वेजेस जो देने हैं वर्कर्स को, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, ये सब में अगर कॉस्ट बढ़ेगा, if there is an increase in cost of raw materials, machines, electricity, water rates, worker wages, transportation facilities, then what will happen? That will affect the price of the goods and services. Yes or no? अगर आप ये पेन प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आपको ही ये पेन महंगी पड़ रही है, then it is but obvious that you are going to increase the price of this pen also. So due to the increase in the cost of raw material, there will be increase in the price of goods and services, and that due to the increase in the production cost, there occurs the price level increases, and there occurs inflation, which is also known as cost push inflation, or you can say supply shock inflation, right? Here they have given other reasons also. Beside increase in demand and increase in cost of production, there are other reasons. First is taxation policy. पहला रीजन क्या है? टैक्सेशन पॉलिसी, कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, then that will affect the price of the goods and service, and if that affects the price of goods and service, people will need more income, supply of money will increases, and that will cause inflation. फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट जीएसटी रेट बढ़ाती है, जहाँ पे उनका 18% था, अगर वहाँ पे वो 28% कर रही है, तो वो 28% के लिए जो भी ट्रेडर, प्रोड्यूसर या शॉपकीपर होगा, तो वो ही चीज़ के लिए वो उसका प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि ही हैज़ टू ऑल्सो अफोर्ड दिस थिंग। सो वहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, यहाँ पे शॉपकीपर, ट्रेडर्स या प्रोड्यूसर्स गुड्स और सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, what will happen, that there will be increase in the price level, our demand, of course you will need basic things, so you're going to buy it, and that will cause inflation thing. Therefore one of the reason is taxation policy, that government, due to the government increase in taxes, there also causes inflation, right? High tax rates increase the production cost, and which leads to the rise in the inflation. Now second is increase in price of import. अगर, as I told you in the previous example also, कि अगर कहीं पे भी प्राइस बढ़ रहा है, अगर इंटरनेशनल में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी पेट्रोल का कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल के प्राइस में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। देयरफॉर if there is increase in the price of imports, जो हम लोग ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे, क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट कर रहे, अगर वहाँ पे प्राइस राइज है, तो हम लोग को भी वहाँ वही प्राइस राइज कहीं ना कहीं तो अफेक्ट होगी ही। इवन ड्यू टू लॉज एंड सब्सिडीज, समवेयर इट विल बी अफेक्टेड एंड समवेयर द प्राइस विल इंक्रीज। देयरफॉर for us also it is going to be more expensive, and that will cause rise in the price level, and that will cause inflation. Third is scarcity मतलब when there is scarcity in terms of raw materials, electricity, or any requirement for production, it leads to increase in price level. जो चीज़ आपको कम मिल रही है और आपको वो ज़्यादा चाहिए प्रोडक्शन के लिए, so it is but obvious you are going to buy them at higher price, and you are going to add that into your cost of production, and your price of the goods and service will increase. But obvious है, तो उसकी वजह से क्या होगा, there will be inflation. So I hope you all are clear with the reasons, that is the causes of inflation, its characteristics and meaning. अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें ये इंस्टाग्राम के अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे DM कर सकते हैं. And rest, these questions can be asked for your 3 to 5 marks and sometimes 2 marks also if it is asked individually. So I hope you all are clear with the concept. If any doubt, just